Hello students, I'm Shrasetia and I'm your social science teacher. Today we are going to study social science civics chapter number 1. Name of the chapter is diversity of class 6th. In this chapter we are going to learn about the meaning, scope and significance of the term diversity, about the linguistic, religious, geographical and cultural diversity in India, and also we are going to learn about the essence of the term unity in diversity in the context of India. So let's start. There is an illustration given here, a table, and let's see what is it. Three neighbors in a well-known locality in Delhi. My name is Fareen. I'm an 18-year-old Bangladeshi. I was born in Dhaka. I speak Bengali, Hindi, English, and I live in Haus Khas. Next is my name is Ishan and I am an Indian. I am 12-year-old. I was born in Kota, Rajasthan. I speak English, Hindi, German and little Japanese. I live in House Khas. My name is Akari. I am Japanese and I am 10-year-old. I was born in Kagashima in Japan. I speak English and Japanese. I also live in House Khas. Now, create understanding diversity. Since we have read the table which was given below, and let's understand the meaning of diversity. What is diversity? A close look at the table that you have created tells us that each of three neighbor is different. Now the above illustration shows that all three neighbors, the Fareen, Ishan and Akari, those three all were different from each other. They have different names. They were probably born in different cities and speak different languages. And yes, that's true. Their name was different. Their cities they were born in were different and the language they speak is also different, yet they have something in common. और उनमें एक चीज़ कॉमन है. दे लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड स्पीक एट लीस्ट वन कॉमन लैंग्वेज. और उनमें कॉमन चीज़ क्या है कि वो सेम लोकेलिटी में रहते हैं और ऑलमोस्ट एक कॉमन लैंग्वेज वो बोलते हैं. राइट. सो दैट इज डाइवर्सिटी. उसे कहते हैं डाइवर्सिटी. इट मीन्स डिफरेंसेस. राइट. Now, the term diversity. Look around yourself. Isn't your classroom a replica of the situation given above? Each student in your classroom not only looks different but also has different habits, speak different languages, belong to different culture and religions. Now, if you look around yourself, your friends or the student or the friends which your classmates, right, if you see them, they have different habits, they're different, speak different languages, they belong to different culture, different religion, right. There can be many more such differences between you and your friend. और ऐसे बहुत सारे differences हो सकते हैं आपके और आपके friends में. This aspect of being different from one another is termed as diversity. और यही चीज़ जिसमें आप दूसरों से अलग हो या डिफरेंसेस हैं दो पर्सन के बीच में, इसे कहते हैं डाइवर्सिटी. द aspect of being different from one another is called diversity. At the same time, some of you might be of same age or might similar share similar interest or belong to same areas. At the same time, इतने differences होने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके बीच में similar होगी. जैसे कि हो सकता है कि आप same age के हों, आपकी जो interest हैं, hobbies हैं, वो same हो, या आप same area से belong करते हो. Right. This refer to a similarity that exists between individual. और इसे कहते हैं दो इंडिविजुअल के बीच में सिमिलैरिटी होना. डिस्पाइट दिस अपेरेंट diversity in a class, it remains a singular unit where student learn play together. अब इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी आप लोग सभी
एक सिंगल यूनिट, एक सिंगल क्लास की तरह रहते हैं, और सिंगल एक यूनिट की तरह लर्न करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट, और प्ले टुगेदर, और साथ में खेलते हैं. डाइवर्सिटी अ वे ऑफ लाइफ. नाउ डाइवर्सिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ. हम बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में देखते हैं जो बहुत डिफरेंट हैं. लेट्स सी डाइवर्सिटी अ वे ऑफ लाइफ. वी ऑल लव wearing different cloth each day, eating a variety of food and exploring new places. Imagine if we had to wear the same cloth every day and eat the same food for all the meal, or visit the same place again and again. Would we find it interesting? Now, since we love wearing new clothes each day, हमें पसंद है कि हम नए क्लॉथ्स पहने, वैरायटी ऑफ फूड खाएं, और नई नई जगह पर घूमने जाएं. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप सेम क्लॉथ एवरीडे पहनो, सेम ड्रेस पहनो हर रोज़, सेम तरीके का फूड जो आप मील लेते हो वो सेम होना चाहिए, सेम प्लेस पर आप विजिट करो अगेन एंड अगेन, तो क्या आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी? नो. लाइफ वुड इनफैक्ट बिकम बोरिंग. लाइफ बोरिंग हो जाएगी, राइट. एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ. डाइवर्सिटी, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना ही हमारी लाइफ है. मतलब हम रोज़ कुछ नया डिफरेंस चाहते हैं, राइट. सो एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ. ईच ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट from another, as each has a different set of skill and interest. Now, a human being is different from another. हर ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग से अलग है. कैसे? सबके पास अलग तरीके की स्किल्स हैं, सबके पास अलग अलग इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, राइट. सम पीपल आर गुड एट पेंटिंग वाइल अदर आर गुड एट राइटिंग. कुछ ऐसे लोग हैं जो पेंटिंग में अच्छे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो राइटिंग में अच्छे होते हैं. सम अदर माइट बी गुड एट सिंगिंग, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगिंग में अच्छे होते हैं. सम मे चूज टू बिकम लॉयर्स, डॉक्टर्स, engineers, or architects, while other may have the skill to become actor, painters, or writers. So similarly, कुछ चूज़ करते हैं अपने प्रोफेशन, जैसे कि लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पेंटर बनना है, या राइटर बनना है, या एक्टर बनना है, राइट. तो ये सब क्या है? डाइवर्सिटी. द अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक, एंड दिस डिफरेंसेस मस्ट बी एप्रिशिएटेड. और ये फैक्ट है कि हर ह्यूमन बीइंग यूनिक होता है, हर इंसान अलग होता है, यूनिक होता है, और हमें उस डिफरेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस डिफरेंशिएट को एक्सेप्ट करना चाहिए. डाइवर्सिटी दस इज नीडेड टू एड वैरायटी टू लाइफ एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल. और डाइवर्सिटी दस क्या करती है? हमारी लाइफ को वैरायटी प्रोवाइड करती है, और मोर मीनिंगफुल, और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती है हमारी लाइफ को. हर दिन कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग करने की हमें क्या होती है? इच्छा होती है, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी. नेक्स्ट इज इंडिया, लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी. अब इंडिया एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है. लेट्स सी. इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी वेयर वी इंडियंस, डिस्पाइट अवर डिफरेंसेस, हैव लिव्ड हारमोनियसली फॉर सेंचुरीज. नाउ, इंडिया हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी. इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी हम सेंचुरीज से, सालों से, सेंचुरीज से, फ्रॉम thousands of years we are living together. We worship different gods. हम different gods को worship करते हैं. Eat a variety of food खाते हैं. Celebrate different festivals. different तरीके के festivals को हम celebrate करते हैं. Speak various languages. बहुत सारी तरीके की languages हम बोलते हैं, like सिंधी, हिंदी, पंजाबी, then उर्दू, एक्सेट्रा, राइट. ये डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हम बोलते हैं. तो ये सब क्या है? डाइवर्सिटी है. येट
देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी डू आइडेंटिकली, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक जैसी ही करते हैं। ओनली अवर वे ऑफ डूइंग दैम आर डिफरेंट। सिर्फ हमारे जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन हम चीज़ें आइडेंटिकल सेम करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब हम समझते हैं कि इंडिया में डाइवर्सिटी क्या है और कैसी है। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज नोन एज नेशन हैविंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इंडिया को माना जाता है कि इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि डाइवर्सिटी क्या है। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, और डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में भी है, हम डेली बेसिस पे भी डिफरेंसेस को फॉलो करते हैं, हमारे जीने का तरीका है डाइवर्सिटी। और इंडिया एक ऐसा लैंड है, ऐसा पीस ऑफ लैंड है या कंट्री है जहाँ पे बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है। ठीक है, अब किस तरीके की डाइवर्सिटी है वो हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। The phrase was coined by India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Now the term unity in diversity, अनेकता में एकता, ये जो फ्रेज है ये किसने कॉइन किया था, किसने दिया था, किसने he has given, it was given by our first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Many kinds of diversity occur in India, such as linguistic, religious, geographical and cultural डाइवर्सिटी। बहुत तरीके की डाइवर्सिटी है इंडिया में, जैसे कि लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, जोग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, first we are going to study is linguistic diversity. India has a diverse list of spoken language. Now India में बहुत सारी spoken languages हैं, right? At least 800 languages, कितनी 800 languages हैं, right? And 2000 dialects हैं। 2000 डायलैक्ट्स, डायलैक्ट्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक तरीके की लैंग्वेज, अ काइंड ऑफ स्पोकन लैंग्वेज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बोली जाती हैं। ठीक है, तो 800 लैंग्वेजेस हैं और 2000 डायलैक्ट्स हैं have been identified. Out of this, 22 languages has been recognized by the Constitution of India. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें से 22 लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है, जैसे कि सम ऑफ दिस नेशनल लैंग्वेजेस इंक्लूड हिंदी, गुजराती, मणिपुर, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सब क्या है, लैंग्वेजेस हैं। Right, so this is the diversity which is based on languages. One would think this variety of languages would make it difficult to communicate. अब कोई एक पर्सन सोचेगा कि, या पर्सन ये सोचेंगे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट, इतनी लैंग्वेजेस होने के बावजूद या इतनी लैंग्वेजेस होने पर कम्युनिकेशन ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स लैंग्वेज एंड नॉलेज ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल रिस्पेक्ट ईच अदर्स लैंग्वेज एंड नॉलेज। लोग एक दूसरे की लैंग्वेज को, उनके नॉलेज को रिस्पेक्ट करते हैं। और कुछ ऐसी कॉमन लैंग्वेजेस हैं जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, जिसके कारण लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, डाइवर्सिटी विच इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज। नेक्स्ट इज रिलीजियस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विच इज़ बेस्ड ऑन religion. India is probably the only nation in the world to have such a wide variety of religion. India probably एकलौता ऐसा नेशन है जहाँ पे इतने तरीके के religions हैं, variety of religions हैं. It is the birthplace of several religions such as Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. अब Jainism, इंडिया प्रोबेबली एक लौता ऐसा नेशन है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन का बर्थ हुआ है, बर्थ प्लेस है, जैसे कि हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म। ये सारी क्या है, यहाँ की बर्थ
इन रिलीजन की बर्थ प्लेस है. इट इज़ अमंग द फ्यू प्लेस इन द वर्ल्ड with a sizable Zoroastrian population. ये वर्ल्ड में कुछ ऐसी प्लेसेस में से एक है जहाँ पे ज़ोरोस्ट्रियन पॉपुलेशन भी प्रेजेंट हैं. ज़ोरोस्ट्रियंस आर, हिंदी में इन्हें फ़ारसी बोलते हैं. फ़ारसी, ज़ोरोस्ट्रियन मीन्स फ़ारसी. नेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ churches, temples, masjids, stupas, gompas, and dargah reflects the amazing multiplicity of religious practice in India. Now there are various places where people used to worship their god or their idols, like church, temple, masjid, dargah, etc. Right? So it is the diversity or differences which is based on religion. Next is diversity in food and festival. Diversity in food and festival. Indian festival and food speaks of India's rich culture and traditional background.